Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue our chapter 6 from where we have left in the last lecture. We have already studied about the data flow diagram, about the documentation of an accounting information system, कि क्यों हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डाटा फ्लो डायग्राम एंड अ लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम. So we are going to define it. A physical DFD illustrate the internal and external entities that participate in a process but does not give the reader a good idea of what these participants do. For this task, we need a logical data flow diagram. Figure 6-5 is a logical DFD for the payroll illustration in figure 6.4. In figure 6.5, note that each circle no longer contains the name of the system entity, but instead contains a verb that indicates a task the system performs. For example, instead of a single circle with the title data entry clerk, as in figure 6-4, logical DFD in figure 6-5 shows two circles with the title process imply hour worked and process payroll change data. So what is the difference between a logical data flow diagram and a data flow diagram? In data flow diagram, you can see uh, here is the data flow diagram in which we have different circles, three circles in this picture, 6-4 on page number 174. We have entered the data entry clerk, then we have entered payroll cashier, then we have entered tax accountant. But instead of these actors or agents, we are going to write here the processes. You see, timekeeping is the data which is traveling from this point to the process imply hour worked. So we are going to have a process in the circle in a logical data flow diagram, and then employees our data will be going towards the payroll master file. So we are excluding the agents here and we are just talking about the processes which are being completed. So in circle we are going to write only the name of the process which include the data of time. Is that clear? हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या Yes, रहे sir. हैं, हमने एजेंट्स के नाम लिखे थे पहले पिछले सर्कल्स में, लेकिन इन सर्कल्स में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम प्रोसेस को इंक्लूड कर रहे हैं कि वो कोई भी एजेंट हो सकता है जो ये काम कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस आवर्स को प्रोसेस करेगा एम्प्लॉयज के आवर्स जो उन्होंने काम किया और उसके रिजल्ट में जो एम्प्लॉयज आवर्स का डाटा मिलेगा वो डाटा पेरोल मास्टर फाइल की तरफ ट्रेवल कर जाएगा. सेम इज द केस विद द ह्यूमन रिसोर्सेज. पेरोल चेंज डाटा अगर कोई आता है तो प्रोसेस करेगा पेरोल चेंजेस को, और जो भी स्टेटस और नया रेट होगा डाटा का वो पेरोल मास्टर फाइल में चला जाएगा. बेटा जिसका माइक म्यूट नहीं है वो जरा काइंडली म्यूट कर ले क्योंकि मेरी आवाज ही गूंज रही है दोबारा दोबारा. जी. थर्डली एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को पे चेक मिलेगा, प्रोसेस पे चेक है. यहाँ पे हमने पहले कहा था पे
बाद कंप्यूट की हमने नेट पे, और वो नेट पे जो सा है पे चेक की फॉर्म में चला गया। तो अब हमने फर्दर क्या किया कि हमने उस पेरोल प्रोसेस को, जो हमने कहा था कि पे चेक प्रोसेस किया गया है, वो पे चेक प्रोसेस के अंदर अब फर्दर छोटे छोटे प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसको हम कहेंगे लेवल 1 DFD। तो दिस इज बेसिकली लेवल 1 और लेवल 1 लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम। Next topic is our guidelines for drawing a data flow diagram. So these guidelines are very helpful for you when you are going to draw your data. Number one, avoid details in high level DFTs like level 0 and 1, where appropriate combine activities that or that बहुत पर data है। तो इस एक्टिविटी पे प्लेस को भी कर, और एक्टिविटी as this helps you by the too much होगा। हम जा रहे हैं, तो जब लेवल करेंगे 5 मैक्स क्या साथ क्या अब एक्सक्यूज मी सर जी। जी सर आपकी आवाज़ काफ़ी देर से बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है, मतलब कि कट कट के आ रही है और आ ही नहीं रही। चलो बेटा, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, आई होप कि रिकॉर्डिंग में ठीक होगा, तो आप लोग इसको दोबारा लेक्चर को सुन लीजिएगा, ठीक है? तो जी जी सर, थैंक यू। ओके, so the third point is different data flows should have different names to avoid confusion related produced and used by different processes. तो बेसिकली थर्ड स्टेप में वो कहता है कि आप लोगों ने डिफरेंट डाटा फ्लोज के लिए डिफरेंट नेम्स यूज करने हैं, कि आप खुद ही करना है कि ये हम डाटा को ये प्रोसेस क्या रहा है, तो प्रोसेस या unless they are the same or you are, so should have data flows in out them. Does an external member that that was that as, तो बेसिक होता है कि जब कोई प्राइवेट साइट को जा रहा है, तब आपने अगर ऐसा नहीं, तो आप क्या करना है भी आप बनाते हैं फाइल, यहाँ पे आपके पास वे चाहिए फाइल डाटा पास, तो यहाँ पर नहीं दिया
तो उसके अंदर आपके पास दोनों किस्म के आएंगे, क्लियर है, दोनों किस्म के एरोज आएंगे, इनफ्लो भी आएगा और आउटफ्लो भी आएगा। फिर इवन फायर इट इज सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई होप कि रिकॉर्डिंग में ठीक होगी, मैं चेक करूंगा उसको। और आपकी है और वेरिएबल इंक्लूड, तो आपको इंक्लूड classify most of the final recipients of system information as external entities, जैसा कि हमने को को that of system बार बार वही एक ही बात कह रहा है कि जब भी हम हाई लेवल डीएफटीज बनाते हैं, हाई लेवल से मुराद है 0 लेवल और 1 लेवल, तो जब भी हम हाई तो हम करें कि हम नॉर्मल को लेकर 9.7 तो आप करें दिस ऑफ तो कोई डिफरेंट परफॉर्म एक ही कि हम चार्ट जाता है आपका because com close low time basic flow अच्छा देखिए कहा हमारे पास हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं हम एक प्रोसेस पूरा तो यह अक्सर ठीक है कॉपी जो सी है वो आपके पास सेंट्रल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जा रही है, तो ये आपके जो सी है हम डिवाइड है तो करते हैं चार्ट ये अब हाई लेवल फ्लो चार्ट है बेसिकली। तो कहता है कि some system flowcharts are general in nature and provide only an overview of the system. These are high level system flowcharts. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखें, ये इनपुट है, इनपुट है, इसको टर्मिनेटर और स्टॉप भी सिंगल सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास सिंबल आ रहा है ये स्टार्ट का सिंबल है। इसके बाद देखें आर्स आ रहे हैं कि वर्कड। अब ये जो आपके पास डायमंड सिंबल आ रहा है, ये जो डायमंड सिंबल है ये बेसिकली डायमंड सिंबल को कहते हैं हम डिसीजन सिंबल। अगर आर्स जो उनसे हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 होंगे तो यस पे हम डिसीजन पॉइंट पे चले जाएंगे।
नो है तो फिर कंप्यूटर रनिंग पेरोल प्रोग्राम, उसकी तरफ चला जाएगा डाटा, इनपुट डाटा कार्ड डाटा एंड फॉर एन एम्प्लॉय के वो कब आया कब गया, पेरोल प्रोसेसिंग रिपोर्ट बनेगी, पेरोल मास्टर फाइल में जाएगा, डाटा ऑनलाइन स्टोरेज में जा सकता है इफ इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये एयरपोर्ट डिपार्चर स्क्रीन, ये मुख्तलिफ आपको सिंबल्स जो उनसे हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे समझ आ रही है बात की? चलें, आई होप कि आपको आवाज नहीं आ रही। यस तो, सर। तो मैं इसको आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा चले, मैं यहाँ पे आज वाइंड अप करता हूँ, तो क्योंकि आवाज का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो ये आप लोगों ने इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना है। एक दो एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है और हम यहाँ तक ही इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट्स तक। तो इससे आगे हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को आ जाए, डीएफडीज और जो फ्लो चार्ट हैं ये आपको समझ आ जाए, तो यू विल बी वेरी फाइन विद द डॉक्यूमेंटेशन। So I'm winding it up and I will share with you the recordings. अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ YouTube पे और आप लोग इसको आसानी से देख सकेंगे।